Good morning, dear student. Today we are going to start a exercise which is 6b. We solve the question number 6. See the question number 6. A train 180 meter long is moving at 35 km per hour. Another train moving in the opposite direction. See, here is written opposite direction at 25 km per hour along a parallel track. Okay, passes by it in 18 seconds. Find the length of the second train. Here is given the length of first train is 180 meter and speed is 35 km per hour, and second train, that means another train moving to the opposite direction at speed 25 km. Then we find the length of the second train. So first we let the length of the second train be x meter. How to solve? See, length of first train is 180 meter and speed of first train 35 km per hour. This is given. Okay, let length of second train be x meter and the speed of second train 25 km per hour is given, and time is also given, which is 18 seconds. See, when both trains moving in the opposite direction, because in the question given both trains move in the opposite direction, so relative speed equals to sum of speed. This is a formula. So the speed of the first train is 35 km per hour and speed of the second train is 25 km per hour. So this is 60 km per hour. See, here it's written km per hour, but length is given meter. So we convert km per hour into meter per hour per second. Okay, then we multiply by 5 upon 18. Okay, 6 3 ja 18 and 6 1 ja 6 and 0. Okay, next 10 into 5, 50 upon 3 meter per second, and total distance. We want to find total distance when any train goes to in this direction. Okay, and another train goes to in that. When we pass and एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये जो है और ये जो है, इन दोनों के लेंथ के इक्वल जब डिस्टेंस चलेंगे तभी जाकर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन. लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज गिवन 180 मीटर बट लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज नॉट गिवन. सो हियर वी लेट द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बी x मीटर. सो हियर वी पुट x मीटर. ओके, and we know that relative speed equals to distance upon time. Distance is this 180 plus x and time is given. Time is what? 18 second. Time is 18 second. So and speed is 50 upon 3 meter. So 50 upon 3 meter per second, 180 plus x meter and upon 18 second. Okay, so 50 upon 3 equals to 180 plus x upon 18. When we solve this equation, that how to solve, see the solution. Here we do cross multiplication. That means 15 into 18, 50 into 18 and 3 into 180 plus x, like this. When we solve, then we get x equals to 120. So length of second train is 120 meter, because here we let the length of train be x meter and the value of x is 120. So the length of the second train is 120 meter. The next question is question number 7. A policeman follow a thief who is 800 meter ahead of him. If they run at the speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively, that means the
स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड थीप स्पीड ऑफ थीप इज 7 किलोमीटर पर आवर. ओके, हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन टेक टू कैच अप विथ थीप. कितने समय के बाद वो कैच कर लेगा. देखो बेटा, अगर ये थीप है, ठीक है, और ये पुलिसमैन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी इधर ही दौड़ रहा है, भाग रहा है, और ये भी इधर ही भाग रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में भाग रहा है. ये इधर भाग रहा है और ये इससे पीछे 800 मीटर पीछे है ये पुलिस, ठीक है, और ये थे. कह रहा है क्या कि कितने टाइम बाद ये जो पुलिसमैन है इसे कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा. और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं. थीप भी तो इधर ही भाग रहा है, चोर भी तो इधर ही भाग रहा है, और ये जो पुलिस है ये भी तो पकड़ने के लिए उसको इधर ही भाग रहा है. मीन्स दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं. तो सेम डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड कितनी दी है, 8 मीटर पर सेकंड दिया है, और इसका 7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे. तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस होता है स्पीड्स का. जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड्स के क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, और डिस्टेंस तो आपका दिया हुआ है, टाइम निकल जाएगा बस. तो देखो बेटा, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पुलिसमैन एंड थिप कितना दिया हुआ है, थिप कितना दिया हुआ है, 800 मीटर. ओके, व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा. 8 किलोमीटर पर आवर दिया है और ये 7 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इनका डिफरेंस 1 किलोमीटर पर आवर. अब देखो बेटा, ये मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे. 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, डिस्टेंस निकल गया, स्पीड निकल गया, टाइम अब निकाल लेंगे. तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगा. तो डिस्टेंस बेटा क्या दिया हुआ है, 800 मीटर, रिलेटिव स्पीड क्या दिया हुआ है, 5/18 मीटर पर सेकेंड. अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, मीन्स नोमिनेटर में चला जाएगा. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2880 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है. अब देखो, सेकंड में है, बड़ा है, हम चाहते हैं कि इसे मिनट में कन्वर्ट कर लें. तो जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 4 जा 24, 4 कैरी बचेगा, 6 8 जा 48, टोटल कितना हो जाएगा, 48 मिनट हो जाएगा. यही आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा. तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. द speed of a boat in still water. The speed, see, dear student, please see this question very carefully. The speed of a boat in still water is 15 km per hour and speed of a stream in 5 km per hour. Find the time taken by the boat to cover 40 km upstream and 36 km downstream. अप स्ट्रीम क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है, अप स्ट्रीम जो होता है, मान लीजिए अगर जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम धारा की दिशा जो है, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है इधर है, अब बोट जो है वो इधर है, ठीक है. तो जब धारा की दिशा और बोट की दिशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो जब भी ये धारा की दिशा है और बोट इधर से जाएगा तो ये धारा की दिशा और बोट की दिशा, तो क्या करता है, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है. तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसकी स्पीड बोट की. तो ये जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है. अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, साथ साथ चलते हैं. मान लो ये इधर धारा बह रही है, बोट भी इधर ही बह रही है, तो क्या होगा, दोगुनी तेजी से हो जाएगा. तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, मीन्स जब डाउन स्ट्रीम देगा तो मान लो अगर इसकी एक्स और इसकी वाई स्पीड है तो ये हो जाएगा टोटल रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा. और इसमें मान लो ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा. मीन्स जब आप अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जब आप डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई स्पीड हो जाएगा. मीन्स दोनों का स्पीड क्या होगा, सम हो जाएगा, और इसमें दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है. तो देखो, अब ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम में, देखो अप स्ट्रीम दिया है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इस क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट
बोट का जो है स्टिल वाटर में जितना होता है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 ये दिया है, ये 5 दिया है, तो 10 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिया है ना, 40 किलोमीटर दिया है। तो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, डिस्टेंस कितना दिया है, 40 किलोमीटर दिया है। तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, और वो भी कैसा, अप स्ट्रीम कर रहा है। तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल रहा है ना, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी आई है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 4 आवर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर देखो डाउन पूछा है, तो डाउन में हम क्या करते हैं, दोनों साथ साथ बह रहे हैं, जिधर धारा की दिशा है, मान लो ये धारा की दिशा है, इधर भी बोट की दिशा भी है। तो अगर प्रवाह तेज रहता है, धारा की दिशा तेज रहती है, स्ट्रीम तेज रहता है, तो ये नाव भी और तेज चलती है। अगर इसी के विरुद्ध आप आएंगे, इधर से आएंगे, तो क्या होगा, नाव जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जब होगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, लेकिन धारा की दिशा में जब बोट की भी दिशा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो वही चीज़ लिखा है हमने, द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस, सी हियर इज रिटन प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये 15 दिया था और ये +5 कर दोगे तो ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज, डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर और स्पीड कितना 20। तो ये देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 18/10। तो 18/10 आवर आ गया। तो 10 1 जा 10, जब इसको तुम आवर को क्या करोगे, मिनट और आवर में चेंज करोगे तो यही आएगा 1 आवर 48 मिनट आएगा। 9 क्वेश्चन देखो बेटा, ए बोट ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो ए बोट ट्रेवल्स एट, बोट का जो स्पीड दे दिया है किसमें, अप स्ट्रीम में दिया है। बोट का जो स्पीड दिया है वो किसमें दिया, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या करोगे, x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम दिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, x वैल्यू की निकाल दोगे, x और y की। तो देखो कैसे होगा, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ओके। गिवन दैट द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में कितने, 8 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो बोट का होता है, बोट का स्पीड होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो वो आता है कितना आएगा, अप स्ट्रीम में आपका दिया ही है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, अगेन द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो y जो है इस y से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब क्या करो, अगेन ले लोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब इसमें करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, एक बोट कवर ए डिस्टेंस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम एग्जाम्पल नंबर
सिक्स जाता है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा उसके बाद, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही बेटा, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।